Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. We will begin our session with the recitation of the Holy Quran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilis salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Hello and welcome everyone. Thank you for taking the time to join us today. My name is Aisha Mahmood and I am the ETP-STP coordinator at Association of Muslim Professionals, abbreviated as AMP. I will start this session with the introduction of AMP, a brief introduction. AMP is a non-profit organization with an on-ground presence in more than 140 active chapters spread across 26 states in 20 countries with almost 6,000 active members. AMP mainly works in three domains: education, employment, and empowerment. AMP has many achievements to its credit under its main flagship projects and keeps adding new ones as the need arises. School Development Program, or SDP, has sessions for all stakeholders in the education field. EAC, or Employment Assistance Cell, launched in 2014, conducts job fairs and job drives, and it also conducts ETPs, that is employability training programs, in colleges. So far, AMP has conducted more than 40 job fairs and around 250 job drives, bringing job seekers and corporates together and facilitating the placement of more than 15,000 needy candidates. It regularly runs career guidance seminars at more than 50 different locations in India, benefiting more than 10,000 students every month. AMP has supported more than 500 needy and deserving students by funding their higher education. It has helped more than 500 orphans with basic education. It has also supported more than 200 poor and unemployed with its self-employment scheme in the past 5 years. AMP is in partnership with around 50 government and non-government organizations. New digital initiatives by AMP are indiazakat.com. Indiazakat.com is India's first online zakat crowdfunding platform and was launched in April 2020 to liberate Indian Muslims from poverty and to set the individual on the path of self-sustenance. The India Mentors, or TIM, is an online mentoring platform that is free and open to all. It envisions a fully educated and empowered student community where no one is left out of the wheels of progress and development due to lack of awareness and guidance. Empowerjobs.com is an online portal started in October 2020 which endeavors to connect the right talent to the right opportunity. Talking about the reach of AMP, it is also present in the Middle East with chapters in Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, and UAE. And active volunteers are present in Singapore, Malaysia, South Africa, Oman, Bahrain, UK, US, and Canada. Recently, it has been registered in US, UK, and Australia as well. Lastly, I would like to emphasize that more than anything else, it is the rope of Islam that the members of AMP hold on to while treating the strenuous path of empowerment of the Indian Muslim community in particular and the society as a whole in general. That has been responsible for the phenomenal growth that AMP has achieved in just over a decade. Now, without further delay, I would like to introduce our speaker for today, Mr. Ahmed Nadeem, who is working as Training and Placement Officer in Al Barakat Institute of Management Studies at Aligarh. Also, he is an experienced soft skills trainer and certified vocational counselor. He is closely associated to the
TPO AMU from last several years. He also has a total experience of 7 years as a trainer. Without delay, I would request Mr. Ahmad Nadeem to start the session. Dear students and attendees, kindly type your questions in the Q&A box which is in your control panel and stick to the topic and ask the questions related to the topic. Today's topic, as you all know, is how to face an interview because you all have registered for the job fair which is tomorrow, that is on Republic Day. So, Ahmed sir, kindly start the session, please. Thank you so much, Aisha ma'am. And it is a privilege for me to become the part of AMP. And thank you so much, Team AMP, for making me the part of this big family. So, without any further delay, without any ado, I would go for the session. Before I go into the specific part of how to face an interview and how it comes, how it moves, whether it moves smoothly or not, and how a candidate should conclude. I really want to know from few participants that when you hear that, like tomorrow you are going to become the part of the interview. So I really want to know what is going on in your mind. आपके दिमाग में चल क्या रहा है, क्या सोच रहे हैं आप लोग कल के इंटरव्यू को लेकर? क्या आपने प्रिपरेशन की है? क्योंकि ये एडवर्टीजमेंट, you have been seeing this advertisement, I believe, from last 4 or 5 days. So in last 4 or 5 days, or from last 24 hours, what exactly is going on in your mind in regards of tomorrow's interview, which is online, which is job fair? So आप में से कुछ भी क्या इसके बारे में मुझे बता सकते हैं? Please raise your hand so Aisha ma'am will unmute you. Okay, well, I'm being a little nervous. Okay, that is okay. Okay, sales and marketing. Okay, that is good. Miss Aisha, Amreen, Mr. Yasir, and Abdul Malik has raised their hands, so I have given Yeah. the permission to talk. You all Okay. may share your views with sir, please. Yes, one by one. Yes. Okay. Yes, Mr. Abdul Malik, kindly speak. Abdul Malik sir, what is going on in your mind in regards of tomorrow's interview, which is online? तो क्या अभी चल रहा है, क्या सोच रहे हैं, क्या प्रिपरेशन है? बस मुझे जल्दी से बताइए. Aisha, if you want, you can add. Yes, Yasir. So actually, I was thinking about, actually I just have passed my 12 last year, and I was looking for a job for the experience. That's what I'm thinking about, ki how to give the interview online and what type of questions the interviewer will ask to me. Okay, that is good. That is wonderful. And the kind of challenge you are going to take, and this is the right time, I believe. And best of luck. और इस सेशन में you are going to understand that how you can start and how you can proceed and how you are going to conclude. So wonderful. Anybody else? Thank you, sir. Most welcome. Again, I really want this session to be very interactive, especially at the end of the session. आप अपने क्वेश्चन आंसर जरूर रखिएगा, बट शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा इसको इंटरैक्टिव बनाना चाह रहा हूँ. आयशा, अब्दुल मलिक, आपका कोई? Murshid or Mr. Afroz, you both have raised your hand, so you can unmute yourself and speak. Hello. Yes. Can you hear me, sir? Yeah. सर मैं एक चीज जानना चाह रहा था, क्योंकि ये पहला ऑनलाइन इंटरव्यू होगा जो मैं फेस करूंगा. अदरवाइज ऑफलाइन तो मैंने कई फेस किए हुए हैं. बात आती है कि आपको मेन ड्रेसअप कैसे रहना है. ओके. वो बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि मैंने अभी डिप्लोमा किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो उस रिगार्डिंग में जॉब सर्च कर रहा हूँ एज डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी, या फिर ऑटोकैड की मेरे को नॉलेज है उस हिसाब से. तो ड्रेसिंग सेंस बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूंगा. ठीक है मुर्शिद, क्योंकि आप ऑलरेडी फेस टू फेस इंटरव्यू फेस कर चुके हैं ऑफलाइन, तो आई बिलीव कि यू आर नॉट गोइंग टू फेस एनी काइंड ऑफ ट्रबल इन अपकमिंग इंटरव्यूज व्हिच इज ऑनलाइन. लेकिन
मैं अपने सेशन में आपको आपके क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर दूंगा। आयशा, आप अपने क्वेश्चन पूछिए जल्दी और फिर हम स्टार्ट करते हैं। Sir, Aisha has written in the question and answer box. Sir, I am very nervous. That's it. Okay. So, okay, let's start. Assalamualaikum, sir. Yes, Asha. Yes, please come. Sir, actually, I've faced offline interview once and twice, but I haven't faced interview through online platform. So Okay. because of which I'm very nervous. I don't know what's question coming to me. So What kind of profile you are carrying, Asha? sorry, sir. What kind of profile you are carrying? Profile related. कल का जो इंटरव्यू है, I mean, क्या जॉब ओपनिंग आपने सेलेक्ट की है, कौन सी कंपनी सेलेक्ट की? Selected for the receptionist or the executive caller. Okay, 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 okay. Good, good. Okay, okay. So let's start the session. Let me go through the. Hello, hello, sir. Yes, Afroz. Sir, Yes. अफरोज अहमद फ्रॉम लखनऊ सर। Yes, Afroz. सर मैं अफरोज बोल रहा हूँ लखनऊ से। बोलिए, आवाज आ रही सर? हाँ बिल्कुल आ रही सर। है। मैं सर वोडाफोन में जॉब करता था। ओके 13 साल का सर मुझे बैक ऑफिस एक्सपीरियंस है, पोस्टपेड हैंडल करता था। ओके तो अभी वहाँ से मेरा रिजाइन हुआ है, ये ओके कोरोना से पहले का। ओके तो अभी मैं जॉब सर्च कर रहा हूँ। ओके ठीक है, जी ठीक है। तो ओके जी आपकी क्वेरी क्या, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? क्वेरी मेरी ये है कि मुझे बैक ऑफिस का एक्सपीरियंस है, तो मुझे मतलब बैक ऑफिस में मैं टेलीकॉम है तो अदर किसी सेक्टर में अगर मुझे जाना है तो मुझे बैक ऑफिस का ही एक्सपीरियंस है, तो वो मैं कैसे हैंडल करूंगा? बस आपकी यही क्वेरी है? जी जी ठीक है, तो हेलो सर। हम आपकी क्वेरी को लास्ट में हैंडल करें। आप हो जी सकता है इस सेशन के दौरान आपको रिप्लाई मिल जाए, अगर नहीं मिलता तो आपके क्वेश्चन को हम लास्ट में हैंडल करते हैं। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ओके थैंक यू। चलिए, इज दिस स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन? सर यस यस सर। Yes, sir. ओके चलिए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर वी गो इनटू द स्पेसिफिक सेशन ऑफ हाउ टू फेस एन इंटरव्यू, सी irrespective of fresher or experience, when we all hear the term interview and we are going to become the part of it, हमको डर लगता है और डर लगना चाहिए। पहली तो बात ये अच्छी तरह से समझ लीजिए, इट इज अ वेरी गुड साइन कि अगर आपको डर लगता है। क्योंकि मुझे भी अगर कहा जाएगा कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जाना है और टीपीओ की का इंटरव्यू, तो मुझे भी डर लगेगा। फिर मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा। यही उसके फेजेस हैं, ये होना चाहिए, बट ये फोबिया नहीं होना सर हमारा क्वेश्चन है, चाहिए। लास्ट में हैंडल कर लें। ओके सर। ओके सो मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इस प्रोसेस को चलने दीजिए। ये जो फियर है, इस फियर के प्रोसेस से बाहर आइए, प्रिपरेशन के प्रोसेस में जंप करिए। अब आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि in interview what exactly they want to know, the interviewers what exactly they want to know, what is their expectation. So it is all about the internal view, because they are very much aware about your internal views. आपके इंटरनल व्यूज के बारे में उनको काफी कुछ पता होता है, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट पहले से पहुंचा होता है, आपका सीवी पहुंचा होता है, आपका कवर लेटर पहुंचा होता है, आपका ईमेल पहुंचा होता है, आपसे टेलीफोन पे बात हो चुकी होती है, तो आपके बारे में उनका इंटरनल व्यू पहले से बना हुआ होता है। बट सॉरी, टू एन एक्सटेंट आपको उनके इंटरनल व्यूज के बारे में नहीं पता होता। उसके कई रीजंस हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं, जब हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं, तो उसमें क्या क्या चीजें हमें कैसे कैसे चाहिए होती हैं। तो चलिए हम अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, तो आज के सिनेरियो में जो मेरी टीम है एचआरस की, जिनसे मैं फीडबैक लेता हूं, जिनसे मैं साल में 2 बार 3 बार इंटरैक्ट करता हूं, ये जानने के लिए कि क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या ट्रेंड आने वाला, तो उसमें ऐसा लगता है कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करने जा रहे हैं तो आपका सब्जेक्ट नॉलेज कम से कम 60 से 70% या 80% होना चाहिए, और आपका सॉफ्ट स्किल्स यानी आपका कॉन्फिडेंस, आपका कम्युनिकेशन, आपका प्रेजेंटेशन, वो 30 से 40% यानी 20 से 30% के आसपास भी होना चाहिए। ये
गवर्नमेंट सेक्टर का पोर्शन हो सकता है, और ये प्राइवेट सेक्टर का पोर्शन है, जिसमें हम बात करते हैं अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं, अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, तो तकरीबन यही रेशियो काम करता है कॉरपोरेट सेक्टर में, क्योंकि वो आपके सिलेबस के साथ साथ, आपके सब्जेक्ट नॉलेज के साथ साथ आपका प्रेजेंटेशन, आपका कम्युनिकेशन, आपकी एम्पैथी, आपका आपका कॉन्फिडेंस, आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी, ये सारी चीजें चेक करते हैं। तो हम इंटरव्यू को 2 से 3 हिस्से में डिवाइड करते हैं। पहला हिस्सा सब्जेक्ट नॉलेज, जो आपका कोर्स है उस पे आपका होल्ड कितना है, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट सॉफ्ट स्किल्स। तीसरा पार्ट मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसका पोर्शन मैं 5 से 7% या मैक्सिमम 10% रखता हूँ। सो इन प्राइवेट सेक्टर और कॉर्पोरेट सेक्टर, अपार्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट नॉलेज, स्ट्रांगली उनको, खासकर मैनेजमेंट के स्टूडेंट से, खासकर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से, उनको बहुत अच्छी ह्यूमन लाइफ स्किल चाहिए होती है, बहुत अच्छी, ऑलमोस्ट उतनी ही जितना आपका सब्जेक्ट नॉलेज पे होल्ड होता है। तो पहला पोर्शन सब्जेक्ट नॉलेज, अगर हम 50% उसको इंटरव्यू में अगर 3 हिस्से में डिवाइड करें, सब्जेक्ट नॉलेज को 50%, उसके बाद ह्यूमन लाइफ स्किल्स यानी सॉफ्ट स्किल्स को 30 to 40%, और 10% का पोर्शन ड्यूरिंग योर इंटरव्यू आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस फेस करते हैं जो आपने पहले सोचा नहीं कभी, जो ऑल ऑफ ए सडन स्पॉन्टेनियस आप सामने आ गया, तो उसमें हमको क्या रिप्लाई देना। उस टाइम पे हमारा कैलकुलेटेड रिस्क एंड चैलेंजेस बहुत काम करता है, हमारा डायनेमिज्म बहुत काम करता है, हमारा किसी भी चीज को थोड़ा सा समझकर उसके लिए यस कहना और चैलेंज के लिए यस कहना बहुत काम करता है। तो अगर हम 3 हिस्से में डिवाइड करें तो ये इस तरह से डिवाइड होता है, सब्जेक्ट नॉलेज, सॉफ्ट स्किल्स एंड योर कैलकुलेटेड रिस्क एंड चैलेंजेस, या कैलकुलेटेड या रिस्क एंड चैलेंजेस। इसको 3 पोर्शन में आप इंटरव्यू को डिवाइड करिए। अब हम आते हैं पहले पोर्शन पे। एक इंटरव्यूअर क्या एक्सपेक्ट करता है इंटरव्यूई से, एक कैंडिडेट से, एक पार्टिसिपेंट से क्या एक्सपेक्ट करता है जब वो आपका इंटरव्यू लेता है? वो ये एक्सपेक्ट करता है कि आपका कम्युनिकेशन कम से कम 8 हो आउट ऑफ 10। कंटेंट, you must be in content, means whatever they are going to ask you, you must reply within the content. तो आप प्रॉपर क्वेश्चन को रिसीव करें। द थर्ड एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, योर पर्सनालिटी। पर्सनालिटी का ये मतलब नहीं कि आपकी सिर्फ अच्छी ड्रेसिंग हो, नो, आप लंबे चौड़े हो, नो नो नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। द पर्सनालिटी मीन्स आपकी टोटल प्रिपरेशन किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर क्या है। फॉर एग्जाम्पल, कल आपका इंटरव्यू होने जा रहा है, आपने वेबसाइट विजिट किया है या नहीं किया है? वेबसाइट विजिट किया है तो कंपनी के बारे में क्या जाना, कितना जाना, ये सारी चीजें, आपका जील, आपका इंटरेस्ट, सीवी पहले भेजी थी या नहीं भेजी थी, अभी आपके पास सीवी कितनी है, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आप कितना होमवर्क करके आए, ये सारी चीजें आपकी पर्सनालिटी का एक पार्ट। अगर आप ऑनेस्टी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब इन सारी चीजों को डिटेल में हम आने वाली स्लाइड्स में देखते हैं। लेट मी चेंज द स्लाइड। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग योर इंटरव्यू ग्लोबली is being asked, tell me about yourself. The very first question. उसका रिप्लाई कैसा होना चाहिए, उसके सीक्वेंसेस क्या होने चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस पोर्शन को वी कॉल इट आइस ब्रेकिंग पोर्शन और आइस ब्रेकिंग पॉइंट। ये आइस ब्रेकिंग का पार्ट होता है, इसमें आप बहुत कुछ गेन कर सकते हैं और बहुत कुछ लूज कर सकते हैं। सो यू हैव द अपर हैंड टू गेन इट, देन गो फॉर द गेन। It is very easy. Your name, your father's name, your hometown or place of birth, your highest education, career objective. I mean, what exactly you want to become. आगे क्या बनना चाहते हैं आप, कैसी जॉब देख रहे हैं, कैसा करियर देख रहे हैं। Then one positive quality जिसको हम अपनी strength भी कहते हैं, hobby, philosophy of life. That is it. एक स्टैंडर्ड सेल्फ इंट्रोडक्टरी पोर्शन के लिए हमको 60 से 90 सेकेंड्स मिलते हैं, यानी 1 मिनट से 1.5 मिनट। उसमें हमें अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होता
और उसके बाद फिर हमारा प्रॉपर इंटरव्यू, टेक्निकल इंटरव्यू शुरू हो जाता है या HR राउंड शुरू हो। ठीक है। फिलोसफी ऑफ लाइफ के पोर्शन पे मैं आपको बता दूं, अगर आप क्लियर नहीं तो, जैसे बहुत सारे लोगों की लाइफ की फिलोसफी होती है, अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरी अगर आप फिलोसफी पूछें लाइफ की, तो आई बिलीव कि लर्निंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। आई बिलीव इट स्ट्रांगली। आपकी कुछ और हो सकती है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी हो सकती है। तो इस तरह की फिलोसफी हम इंटरव्यू में अपनी बताते हैं। Again, your name, father's name, hometown, place of birth, highest education, career objective, one positive quality, hobby, philosophy of life. Career objective में आप क्या बनना चाहते हैं? Suppose if you want to become sales manager in upcoming 1 or 2 or 3 years, उसके बारे में थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए। आप VP सेल्स बनना चाह रहे हैं, आप एक बहुत बेहतरीन डेवलपर बनना चाहते हैं, तो ये आपका करियर ऑब्जेक्टिव, उसमें थोड़ा सा एक्सपेंड करके आपको बताना पड़ता है। बट in 60 to 90 seconds, make very sure. See, on the day of convocation, ये हमारी expectation होती है, ये पोर्शन, एंड ये रियलिटी होती है ज्यादा से ज्यादातर फ्रेशर्स में। इसको हम जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे हमारे लिए बेहतर होगा। अगेन लेट मी टेल यू, ये जो डेटा मैं आपको दे रहा हूँ, ये मेरी अपनी एक HR की टीम है, दिल्ली NCR और 2 बेंगलोर में और एक हैदराबाद में बैठे हैं, जिनसे मेरी बात होती रहती है और वो मुझे बताते रहते हैं कि यार ये चीजें चल रही हैं। उनका कहना ये है कि जब हम कैंपस ड्राइव की बात करते हैं, मैं अभी कैंपस ड्राइव की बात कर रहा हूँ, तो मैं जिस टीम से बात करता हूँ उनका कहना ये है कि यार सिर्फ 25% स्टूडेंट मुझे एम्प्लॉयबल लगते हैं, 75% एम्प्लॉयबल नहीं लगते मुझे। उनको अभी अपने सब्जेक्ट नॉलेज पे और अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे बहुत काम करना है। हमारे स्टैंडर्ड को वो मीट नहीं कर पाते, जबकि पता नहीं लाखों ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं हर साल, लेकिन वो स्टैंडर्ड मीट नहीं कर पाते। और उनको ये समझ नहीं है कि व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट एंड व्हाट इज डिप्लॉयमेंट। और उनके हिसाब से डिप्लॉयमेंट रेट 1% या मैक्सिमम 2%। सो माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, इफ यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज डिप्लॉयमेंट एट द एंड ऑफ द सेशन, मुझे बताइएगा जरूर, इस पे मैं बात करूंगा। तो अभी हम HR की बात करें तो उनका कहना यह कि 25% के अलावा 70% यार मुझे ऐसा लगता है हमारे काम के नहीं है, या वो पोर्शन नहीं है जो हमें चाहिए। तो हमें किन किन एरियाज में काम करना है? हमें काम करना है अगेन अकॉर्डिंग टू देम, हमें इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना होता है। कम से कम 74% students are not capable to speak English during their interviews for 10 to 15 minutes, what they have been saying to me. और उनकी एनालिसिस जो आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिनको हम डेटा एनालिसिस कहते हैं, आजकल ईच एंड एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द डेटा। तो डेटा एनालिसिस उनकी बहुत वीक है। दे डोंट गिव द एग्जांपल्स ऑफ डेटा, दे डोंट यूज एंड दे डोंट सपोर्ट, दे डोंट टेक द सपोर्ट ऑफ डेटा। वो पोर्शन उनका बहुत वीक है, उस पर काम करने को उनसे कहिए, ऐसा उनका कहना है, और जो मैं भी फील करता हूं। सो जब भी आप कोई इंटरव्यू में जाइए, अपनी प्रिपरेशन करिए, मॉक इंटरव्यू सेशंस करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर मॉक करिए, अपने टीचर्स के साथ बैठकर मॉक करिए, अपने ट्रेनर के साथ बैठकर मॉक करिए, मॉक सेशंस लीजिए और एनालिसिस का सपोर्ट लीजिए। सपोज अगर आपसे पूछ दिया कि फीमेल एजुकेशन इन इंडिया, व्हाट डू यू सी इन लास्ट 10 years, तो आपके पास एक अप्रोक्सीमेट डेटा होना चाहिए कि ओके पिछले 10 सालों में ये डेटा हो सकता है या हुआ। और ये इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी जब आप न्यूज से अपडेट होंगे, जब आप न्यूज़पेपर से अपडेट होंगे, जब आप इस तरह के डिस्कशंस एंड डिबेट सुनेंगे। क्योंकि तकरीबन हाफ ऑफ द पोर्शन ऑफ इंटरव्यू इज नॉट फ्रॉम योर सब्जेक्ट नॉलेज, ऐसा देखने में आता है। तो वो कौन सा पोर्शन होता है? वो सोसाइटी का होता है, वो पॉलिटिकल पार्ट होता है, वो एजुकेशनल पार्ट होता है, वो सोशल इकोनॉमिकल पार्ट होता है, व्हाट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, व्हाट इज द हॉट टॉपिक। इस तरह के पोर्शंस भी हो सकता है। नाउ
एज आई सेड टू यू कि मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कई डिपार्टमेंट में लड़कों की ट्रेनिंग कराता हूँ और वहाँ के टीपीओ से टच में हूँ। मैंने कई प्लेसमेंट ड्राइव्स में इंटरव्यूअर्स को ये क्वेश्चन बच्चों से पूछते हुए देखा है और सुना है कि एजुकेशन और स्किल और एक्सपर्टीज में आप डिफरेंस बता सकते हैं, और खासकर मैनेजमेंट के बच्चों से ये मैंने पूछते हुए देखा इंटरव्यूअर्स को। And believe me, more than 92-93% students were not capable to give the proper reply. So suppose एक एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैंने पहले कहा कि कुछ सोशल इकोनॉमिकल पार्ट आ जाता है हमारी इंटरव्यू में हमारे सब्जेक्ट नॉलेज से हट के। तो suppose if I have completed MBA and my strong area is marketing or my strong area is HR and I'm working as an HR from last 3 years. So my education is MBA, my strong area is HR, and my expertise is human resource. That is it. इसके अलावा क्या हो सकता है? बहुत सीधा सीधा सा रिप्लाई। हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द होमवर्क। सो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक्सपेक्ट एनीथिंग इन द इंटरव्यू, एनीथिंग। वो ये सेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसको मैं और भी क्लियर कर दूंगा आपको। See, nowadays from what I have been observing from last 4 to 5 years, इंटरव्यू में आपके सब्जेक्ट नॉलेज पे क्वेश्चन तो पूछते ही हैं। सब्जेक्ट नॉलेज से एक चीज अटैच कर दी उन्होंने, एसोसिएट कर दिया, विच इज योर इंटर्नशिप। बहुत पूछते हैं कि ओके, हैव यू कंप्लीटेड योर इंटर्नशिप, हैव यू go through your internship, okay, how many weeks you have completed, okay, whom you have assist, what was the name of the company, क्या सीखा, कैसा रहा, organization behavior क्या होता है, what is requirement generation, what is requirement fulfillment, आप किस टीम का पार्ट थे, आप जनरेशन का पार्ट थे कि आप फुलफिलमेंट का पार्ट थे, या आप दोनों के बीच में जो पोर्शन होता है उसका पार्ट थे, क्या सपोर्ट कर रहे थे। So in that part, if you have really completed your internship properly and fairly, believe me, you have the very upper hand in the interview. क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ा पोर्शन इंटरव्यू का आपके इंटर्नशिप पे काफी कुछ रिलाय करता है, बहुत रिलाय करता है। कभी कभी तो मैं ऐसा देखता हूँ कि इंटरव्यू में 2 चीजें पूछी जाती हैं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, और वेरी क्विकली व्हाट वाज योर इंटर्नशिप, और उसी पे इंटरव्यू खत्म हो, वही एंड हो गया। खासकर ह्यूमैनिटीज के बच्चों के, जो ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उनकी इंटर्नशिप और उनके प्रोजेक्ट्स बड़े लंबे होते हैं और उनका इंटरव्यू भी बड़ा लंबा होता है। सो इस चीज का बहुत ध्यान रखिए। सो इन दिस पिक्चर, दैट येलो पार्ट इज द पार्ट ऑफ इंटर्नशिप। 2 + 2 is 4, +1 is that particular internship which you have written in your CV. I do not know whether that is fair or not. If that is fair, you are blinking here in yellow, believe me, और आपका अपर है। Nowadays, believe me, the multitasking in any section, in any sector, in any organization is open-handed will. चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो मिडिल साइज कंपनी हो, चाहे वो बिग कंपनीज हो, मल्टीटास्किंग चाहिए होती है। सो ये मल्टीटास्किंग आपको कहां से मिलेगी? जैसे एक कॉमन सी सोच हमारी बनती है, सॉरी टू से दिस, कि यार हमें जितनी सैलरी मिल रही है हम उतना काम करें। ठीक है, ओके, समझ में आता है, बट इससे आपने अपना डायनेमिज्म रोक दिया है और आपने अपनी लर्निंग रोक दी, पहली चीज। दूसरी चीज, मल्टीटास्किंग सिर्फ उसको ऑफर की जाती है जिसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो मल्टीटास्किंग कर सकता हो। क्योंकि जो आपका बॉस है, जो आपका इमीडिएट बॉस है, आपका इमीडिएट मैनेजर है, ही इज नॉट सिटिंग आइडल, वो आपको जज कर रहा है, वो आपको रीड कर रहा है। तो दैट रीडिंग इज नॉट गोइंग इनटू द वेन। ऐसा नहीं है वो डस्टबिन में जा रहा है, ऐसा नहीं है। वो आपकी पूरी रिपोर्टिंग तैयार कर रहा है, चाहे पेपर पे चाहे अपने माइंड पे। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। सो ऑलवेज गो फॉर द मल्टीटास्किंग। इफ एनीबडी इज गोइंग टू आस्क यू फॉर द मल्टीटास्किंग, always say yes, always take challenge. During your interview or in your job,
try to be out of your comfort zone and always. Since the life is the complete, I mean the last breath of the life, till the last breath of the life, the learning is on. So comfort zone में अगर आपको एक चीज नहीं मिलती है, that is learning. कंफर्ट जोन में हर चीज आसानी से होती है, आसानी से आप सीख नहीं सकते, ये आसानी से आप वो सीख सकते हैं जो बहुत लोगों को पता है. तो आपको अगर कुछ ज्यादा पता करना है तो आपको कंफर्ट जोन से यू मस्ट हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. सो ईदर ड्यूरिंग योर इंटरव्यू और इन योर जॉब, डोंट ट्राई टू बिकम द पार्ट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ऑलवेज बी आउट ऑफ दैट. और जब आप कंफर्ट जोन से बाहर रहते हैं तो देयर आर टू जोन्स, लर्निंग जोन और पैनिक जोन. ऑलवेज ट्राई टू बिकम द पार्ट ऑफ द लर्निंग जोन. कभी भी पैनिक जोन में मत, लर्न करते रहिए, लर्न करते रहिए. प्रॉपर इंटरव्यू 3 फेजेस होते हैं. इंटरव्यू के पहले, प्री इंटरव्यू, एटिकेट्स ड्यूरिंग इंटरव्यू एंड पोस्ट इंटरव्यू. ये 3 पोर्शंस हैं, हम इनको 1 बाय 1 देखते हैं. सो इंटरव्यू का एक पूरा स्ट्रक्चर समझ लीजिए कि वो क्या होता है. जैसे एक प्रॉपर इंटरव्यू का जो साइकिल होता है वो कैसा होता है. पहले एचआर आपको कॉल करती है, एक टेलीफोनिक राउंड होता है और आपके बारे में एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन ली जाती है कि हु यू आर. ऑनलाइन में हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन जब फेस टू फेस होता है तो उसके पहले ऑब्वियसली एक टेलीफोनिक राउंड होता है जिसको हम एचआर राउंड कहते हैं. आपका इंटरेस्ट जॉब के लिए कितना है ये जानती है वो. आपकी कम्युनिकेशन का लेवल चेक करती है. आपका टेक्निकल राउंड में जाने लायक इंटरव्यू है या नहीं है ये तय करती है. सो एचआर राउंड फॉर द बेसिक इंफॉर्मेशन लाइक फ्रॉम विच एरिया यू बिलोंग, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, आपका कम्युनिकेशन स्किल क्या है, रियली यू वांट टू बिकम द पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन और नॉट. टेक्निकल राउंड को फॉरवर्ड कर दिया जाए इन अपकमिंग अ डे और 2 और 3 और वीक, यू वुड बी एबल. ओके, सब ये सारी चीजें हो गई एचआर राउंड. अब एचआर राउंड के बाद 2 राउंड आते हैं. इन सेकेंड राउंड या तो हम उसी राउंड की बात करें जो राउंड कल होने वाला है विच इज ऑनलाइन, या फेस टू फेस राउंड. सो टेक्निकल राउंड इज द मेन राउंड ऑफ एनी इंटरव्यू. सो टेक्निकल राउंड में हमेशा आपका सब्जेक्ट नॉलेज, आपका सॉफ्ट स्किल साथ साथ चलता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा. अगर आप कंप्यूटर साइंस के भी स्टूडेंट, अगर आप कोर इंजीनियर है तो भी आपके टेक्निकल पार्ट को अगर वो 70% कवर कर रहे हैं, 80% कवर कर रहे हैं, तो भी आपका सॉफ्ट स्किल्स, ह्यूमन लाइफ स्किल्स वो 30 से 20% कवर करते हैं. हमेशा ध्यान रखिए. सो अगेन you will have to focus on your subject knowledge, you will have to focus on your soft skills, and to an extent some 5, 7 or 10% you will have to focus on your risk and challenges जो अनएक्सपेक्टेड आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है. तो उसके लिए आपको यस कहना है या नहीं कहना ये आप डिसाइड करिए. मेरे हिसाब से अगर आप किसी भी काम को करने में 40 से 50% एबल है, से यस, बाकी आप मेहनत करके उसको बराबर करें. द लास्ट राउंड, जब हम ऑफलाइन इंटरव्यू की बात करते हैं तो एक राउंड होता है जिसको हम कहते हैं क्लाइंट इंटरैक्शन राउंड. तो क्लाइंट इंटरैक्शन राउंड में दे वांट कैंडिडेट टू बी ऑन द फ्लोर. दे रियली वांट टू हैव अ लुक ऑन द कैंडिडेट कि कैसा है, कैसा दिखता है, कैसे कैरी कर रहा है अपने आप को. ये सारी चीजें देखी जाती हैं आजकल कॉर्पोरेट. इस चीज का ध्यान रखिएगा. ये पूरा स्ट्रक्चर है इंटरव्यू का. नाउ द प्री इंटरव्यू एटिकेट्स, जॉब एडवर्टीजमेंट को 3 से 4 बार जरूर पढ़िए. उसके बाद अपने आप को एनालाइज करिए whether you are capable for this job or not. If you are capable more than 65 or 70%, go for the job. जब हम प्री इंटरव्यू एटिकेट्स की बात करते हैं तो कंपनी के बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो कंपनी के बारे में हम क्या पढ़ेंगे? द ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, कब बनी कंपनी, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के मेन क्लाइंट्स क्या हैं, कितने दिनों से काम कर रही है, कैसा काम कर रही है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, किस पर्टिकुलर सेक्टर में है, सर्विस सेक्टर में है या किसी और सेक्टर में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, हेल्थ केयर में है, एफएमसीजी में है. इन सारी चीजों के बारे में बात करते हैं. कुछ 2-3 बड़े क्लाइंट्स अगर हैं तो उसके बारे में भी याद रखते हैं कि हाँ ये बड़े क्लाइंट्स, इनके बारे में हम बता सकते हैं. अपने इंटरव्यू, अगर इफ यू आर गोइंग टू फेस द इंटरव्यू ऑफलाइन, हमेशा 7, 8, 10 कॉपीज ऑफ
योर सीवी कैरी करिएगा, बिकॉज यू नेवर नो कि अ बेंच ऑफ 3 इंटरव्यूअर्स और अ बेंच ऑफ 5 इंटरव्यूअर्स आर देयर। ये आपको नहीं मालूम, वो 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। तो आपका इंटरव्यू से रिलेट करता हुआ सीवी पहले पहुंच चुका है, बट टू शो योर इंटरेस्ट, टू शो योर जील, टू शो द एटिकेट्स, आप हर एक इंटरव्यूअर्स को अलग अलग सीवी देते हैं, जो ये बताता है कि नहीं, आप एक एटिकेट को फॉलो कर रहे हैं एंड यू आर रियली सीरियस फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब। कभी कभी इंटरव्यू में आपसे आपका रेफरेंस पूछ देते हैं कि अच्छा ठीक है, आपके बारे में अगर हमें कुछ जानना हो, आपके बारे में मतलब आपके बिहेवियर के बारे में, तो आप किसको रेफरेंस देंगे। सो आपका जो भी फ्रेंड हो, कभी हम फ्रेंड का रेफरेंस देते हैं, कभी हम अपने टीचर का रेफरेंस देते हैं, कभी हम अपने ट्रेनर का रेफरेंस देते हैं, जो हमें जानता हो, हमारे बारे में एक बेहतर नॉलेज रखता हो, उसका हम रेफरेंस दे देते हैं। इस चीज का भी ध्यान रखिए। रेफरेंस में नाम, ईमेल एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर, ये 3 चीजें दी जाती। Now the most important part of any interview, what is your strength? पूछते हैं, अक्सर पूछते हैं, अक्सर क्या, आई बिलीव कि तकरीबन हर इंटरव्यू में पूछते हैं कि वुड यू लाइक टू टेल अस अबाउट योर स्ट्रेंथ? ओके, लाइक टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क एंड चैलेंजेस, I have that ability, I have this ability. I'm quick learner too. I believe on priorities. I understand the sequences. I understand the priority. कब किस मौके पे किसको आगे लाके रखना है और कौन सा काम कब करना है, I really understand. और मेरी इंटर्नशिप ने मुझे ये सारी चीजें सिखाई भी। I can do the mistake but will not repeat. इस तरह के रिप्लाईज फ्रेशर्स से, इवन एक्सपीरियंस से हमेशा वेलकम किए जाते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा वेलकम किए जाते हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तो बहुत विद ओपन हैंड, बहुत वेलकम करते हैं आपके इस तरह के रिप्लाई को। व्हाट इज योर वीकनेस? एक चीज आपसे कहूंगा कि अपनी वीकनेस में कोई ऐसी वीकनेस मत बता दीजिएगा जहां से योर डिस्कनेक्शन विल स्टार्ट। नो, नॉट एट ऑल। सी, एवरीवन इज कैरिंग वीकनेस, एवरीवन। सो आप भी। इवन टाइम मैनेजमेंट को लेकर हम लोग बहुत प्रॉम्प्ट नहीं है, हमसे टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता। आप तो अभी फ्रेशर्स हैं, अभी तो बहुत कुछ सीखना है आपको। सो यू कैन मेंशन time management, you can mention multitasking, you can mention that I really want to expose myself in IT to do my work effectively. इस तरह के रिप्लाई आप अपने वीकनेस में दे सकते हैं कि मैं अपने आप को अपग्रेड करते रहना चाहता हूं, मैं एक जगह बैठना नहीं चाहता। टाइम मैनेजमेंट को लेकर आई एम नॉट वेरी मच हैप्पी बट आई एम वर्किंग। आई रियली वांट टू डू द मल्टीटास्किंग but I'm not still able to do the multitasking. I'm working on it. इस तरह के रिप्लाई होते हैं इंटरव्यू। इस तरह के सवाल पे ऐसे रिप्लाई करिएगा, ऐसे अप्रोच करिए। द मोस्ट टफ क्वेश्चन, व्हाई शुड आई हायर यू? किसी भी इंटरव्यू में इवन अगर मुझसे पूछा जाए तो इसके लिए मुझे काफी, सी, इफ यू आर अ फ्रेशर, इंटरव्यू में आपका अपर हैंड आपके सेल्फ इंट्रोडक्शन पे हो सकता है, आपके सब्जेक्ट नॉलेज पे हो सकता है, आपके इंटर्नशिप पे हो सकता है, लेकिन एक एक्सपीरियंस्ड आदमी के पास बहुत ज्यादा अपर हैंड होता है, क्योंकि वो पहले काम कर चुका है। 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, वो अपने काम के बारे में ही बताता रहे, उसका बहुत अपर हैंड रहता है। वैसे ही जैसा आपका आपके इंटर्नशिप वाले पोर्शन पे रहता है। सो बल्कि मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। सपोज जब एक प्लेन टेक ऑफ करता है ना, तो उसमें जितने भी इंजन हो, 2 हो 3 हो, वो सारे के सारे ऑन होते हैं। सो दिस इज द प्लेस, दिस इज द टाइम व्हेन यू विल हैव टू ओपन योर ऑल फोर्सेस। सो उसमें क्या हम लिख सकते हैं, क्या हम कह सकते हैं? लाइक दिस, आई वांट टू प्रूव माई सेल्फ एज अ प्रोफेशनल, टू गो थ्रू विद द चैलेंजेस। आई वांट माई अपग्रेडेशन अलॉन्ग विद माई सक्सेस, along with the success of the company. I believe that I am the best fit for this particular role. I am neither underqualified nor overqualified, but exact what organization requires. इस तरह के रिप्लाई होते हैं। या सपोज अगर आपका जॉब प्रोफाइल है ऑफिस एडमिन, और उसमें
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा पोर्शन कवर नहीं हो रहा है आपकी प्रोफाइल में, बट यू आर वेरी गुड इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसको ऐड करिए. So that would become your strength. That would become why they should hire you. हम कॉमनली मालूम है क्या रिप्लाई करते हैं? आई एम ऑनेस्ट. अरे वो तो हर आदमी कहता है ऑनेस्ट. अब वो पता नहीं कितना होता है नहीं होता, वो तो बाद में ही पता चलता है. So this is not the proper reply कि I am honest or I am hard worker. वो तो जब when you are going to become the part on the of that particular organization, they will realize कि whether you are hard worker or not. वो उनको पता चल जाएगा. उनको 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 पता चलने दीजिए. रिप्लाई दीजिए प्रॉपर. ये वही पोर्शन है कंटेंट का जो मैंने आपको बताया था. कंटेंट के 10 पॉइंट्स, 10 में से आपको 8-9 पॉइंट्स गेन कर. कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस लेवल अच्छे होने का एक ही टूल है, आपका होमवर्क बेहतर होना चाहिए. इफ यू हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क प्रॉपरली, बिलीव मी, योर कॉन्फिडेंस लेवल इज ऑटोमेटिकली वेरी अप. बात करिए, कुछ ट्यूटोरियल्स देखिए, लोगों से इंटरैक्ट करिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल वैसे ही बेहतर हो जाएगा. अक्सर पूछते हैं वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 3 to 5 years. हमारी कंपनी में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? तो suppose if you are going to join the job as sales executive, so in next 3 to 5 years, sir, sales manager in the same line, or I see myself in a very senior managerial position handling an important portfolio of a company. इस तरह के प्रोफेशनल रिप्लाई की जरूरत होती है. ये जानने के लिए पूछा जाता है क्वेश्चन कि ऐसा तो नहीं कि ज्वाइन करने के 1 से 2 महीने बाद आप चले जाएंगे, छोड़ देंगे. एक पार्ट ये होता है. दूसरा पॉइंट ये होता है इसका कि आप इसका कितना बेहतर रिप्लाई, सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई दे सकते. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. कंट्रोल योर इमोशंस, बी असर्टिव नॉट एग्रेसिव. असर्टिव मीन्स यू आर स्टिक व्हाट यू हैव सेड. सपोज एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, the difference between assertiveness and aggressiveness. Suppose if I am the part of the interview and interviewer asked me to drink water and I said no sir, thank you so much, thanks a lot sir. हो गया. 5 मिनट के बाद उसी इंटरव्यूअर ने फिर मुझसे कहा ओके प्लीज टेक वाटर. मैंने कहा थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट सर. फिर 5 मिनट के बाद उसने मुझसे कहा कि पानी पी लो यार. मैंने कहा थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट. यही असर्टिवनेस है जिसमें आप एग्रेशन शो नहीं कर रहे. और इसी पोर्शन को अगर आपने एग्रेसिवली दूसरे या तीसरी बार में रिप्लाई कर दिया, दे रियली वांट टू नो दैट आपके अंदर टॉलरेंस का पोर्शन कितना है. और ये चीज दे रियली वांट टू चेक दिस आउट ड्यूरिंग योर इंटरव्यू. इस बात का ध्यान रखिए कि चाहे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे रियली वांट टू नो कि हाउ गुड यू आर इन योर टेम्परामेंट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. आई टू आई कॉन्टेक्ट रखिएगा, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो. इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा. इट इज अ पीस ऑफ कॉन्फिडेंस. फॉर्मल ड्रेस कोड हमेशा रखिएगा. आप में से किसी ने पूछा था, तो फॉर्मल ड्रेस कोड एक ऐसा ड्रेस कोड होता है जो सोबर लगता है, दिखने में बुरा नहीं लगता. मतलब हम जीन्स पहन के चले गए और टी शर्ट पहन के चले गए और ऊपर से कोट डाल लिया, नो. हम फॉर्मल पैंट पहन के गए, हम फॉर्मल शर्ट पहन के गए, और पॉसिबल हुआ तो हमने टाई भी लगाई. ये होता है. हम बहुत ज्यादा बालों बिखेरे हुए पहुंच गए, नो. प्रॉपर होना चाहिए हमारा लुक, एक सोबर लुक होना चाहिए. और एक चीज और भी कही जाती है, ड्यूरिंग योर इंटरव्यू यू कैन स्माइल बट यू कैन नॉट लाफ. यू कैन नॉट लाफ. ये एटिकेट्स के अगेंस्ट जाता है कहीं ना कहीं. सो इस बात का, इन सारी चीजों का हो सके तो ध्यान रखिएगा. दे रियली वांट यू टू स्पीक. सो जो क्लोज एंडेड रिप्लाई होते हैं ना, उससे बचिएगा कि ओके यस नो मे बी आई डोंट नो. इस तरह के रिप्लाई से बचिएगा. जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको प्रॉपरली 2, 3, 4 लाइनों में फिनिश करिए. यस नो मे बी आई डोंट नो में मत जाइए. बिकॉज इफ यू आर नॉट गोइंग टू स्पीक, they cannot judge you. If they cannot judge you, they cannot call you on floor.
इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। सिटिंग पोस्चर फेस टू फेस इंटरव्यू में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. To me, this slide is very important because irrespective of your subject knowledge, irrespective of your soft skill or human skill knowledge, irrespective of your risk and challenges, how good you are in your controlling ability during your interview matters a lot. Matters a lot. मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको. एक इंटरव्यूअर, एक इंटरव्यूवी गया इंटरव्यू देने के लिए, एंड दो इंटरव्यूअर्स बैठे हुए थे सामने. एक ने उठ के एक स्विच ऑन किया जिससे फैन ऑन हो गया और कुछ पेपर बिखर से गए. तो दोनों इंटरव्यूअर्स उठकर आए और पेपर को कलेक्ट करने लगे, और ये जो कैंडिडेट था ये भी पहुंचा, ये भी पेपर कलेक्ट करने लगा. सो एक इंटरव्यूअर ने कैंडिडेट से कहा कि ओके, यू गो गो एंड सेट, वी विल कलेक्ट दिस पेपर. उसने कहा नहीं सर, आई विल हेल्प यू. दूसरे वाले ने भी कहा कि नहीं, यू कैन गो एंड यू कैन सिट देयर. उसने कहा नो सर, आई रियली वांट टू हेल्प यू. फिर से पहले वाले ने बोला कि नो नो, आई एम सेइंग यू यू गो एंड सिट. उसने कहा सर, व्हेन आई विल हैव टू वर्क विद यू, तो अभी से क्यों नहीं. इस तरह के जो कॉन्फिडेंस के साथ कंट्रोलिंग एबिलिटी वाले रिप्लाई होते हैं बहुत मैटर करते हैं. बिलीव मी, बहुत मैटर करते हैं. इट मैटर्स अ लॉट. हमेशा सब्जेक्ट नॉलेज पे बेस्ड इंटरव्यूज नहीं होते, ये ध्यान रखिएगा. इसका ये मतलब नहीं कि आपको अपने सब्जेक्ट नॉलेज को प्रिपेयर नहीं करना, बहुत प्रिपेयर करना है. मगर अपार्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट नॉलेज, आपको अपने बिहेवियरल, अपनी पर्सनैलिटी, अपने रिस्क टेकिंग एबिलिटीज को बहुत टेक केयर करनी है. कभी कभी पूछते हैं आपसे, डू यू हैव एनी क्वेश्चन. यस सर, आई हैव क्वेश्चन. एंड ये साइन अच्छा है. अगर आपसे पूछा जा रहा है इंटरव्यू के एंड में कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन, यस आई हैव. थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन सर. व्हेन कैन आई ज्वाइन, व्हाट कैन बी द ज्वाइनिंग डेट. वहीं से ये भी आपका एक पॉजिटिव आंसर है. इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा. अगर आपसे ये पूछते हैं तो इस तरह के रिप्लाई दीजिए. दिस इज फ्रॉम माई साइड. अब मैं ये वीडियो देख लीजिए, फिर क्वेश्चन आंसर राउंड पे जाएंगे. इज एवरीथिंग क्लियर, साउंड पिक्चर क्लियर है.
पहले इस वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं, फिर सेशन के बारे में बात करेंगे जो आपकी क्वेरीज होगी। सबसे पहले तो ये वीडियो देखकर आप समझते क्या है, आपको क्या लगा? Sir, this video means that we should never lose hope no matter what the situation is. Okay. Okay, that is great. Yes, sir. Yes, sir. I also said that we don't have to just हमको हमेशा भी कभी भी अपनी होप को छोड़ना नहीं चाहिए, और जिस चीज को हमने स्टार्ट किया उसको उसके एंड तक पहुंचाना चाहिए। That is good. Izzat, you want to say something? See, ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो 2-3 चीजें बहुत क्लियरली बताता है। जब मैंने पहली बार इस वीडियो को देखा था, तो इस वीडियो को देखने के बाद मैं आधा घंटा बैठ के सोचता रहा कि इंसान को अपनी लाइफ में क्या क्या करना चाहिए और कहाँ रुकना चाहिए और कहाँ से फिर आगे बढ़ना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, पहली चीज, डिस्पाइट हिज प्रॉब्लम। ओके, पहला क्वेश्चन ये बताइए, वो जो बीच में एक आदमी आया था वो कौन था जो उसको सपोर्ट कर रहा था? Sir, his father. ओके, दैट इज गुड। जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि आप क्या करने आए, तब तक आप जो भी कर रहे हैं उसमें वो मजा नहीं आएगा, वो रिजल्ट नहीं आएगा। उसको मालूम था वो एथलीट, डिस्पाइट हैविंग बिग प्रॉब्लम इन वेन, जो बहुत ही डेंजरस हो सकता है, he decided not to run fast but to run slowly because he made to do this. उसको दौड़ना है, उसको रेस में, अगर इस वाली रेस में फर्स्ट नहीं आ सकता कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस रेस को फिनिश लाइन तक जाना है, ये उसकी जॉब है, इतना उसको करना है, ये उसने तय कर लिया। पहली चीज। दूसरी चीज, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर प्रिपरेशन, आप महीनों से कर रहे हो, सालों से कर रहे हो, दिनों से कर रहे हो, एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको वो चीज मिल जाती है जो आप चाह रहे हैं, थैंक गॉड। नहीं मिल पाती है, थैंक गॉड, ये उसकी मर्जी थी, आप कुछ नहीं कर सकते। इस तरह के अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में यू कैन नॉट डू एनीथिंग, कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आपकी प्रिपरेशन में कमी है तो हम प्रिपरेशन की कमी पे ब्लेम डाल जरूर सकते हैं, डालना चाहिए भी, लेकिन अगर हम अपने इंट्रोस्पेक्शन में ये पाते हैं कि नहीं मेरी प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं थी, तो फाइनली इट वाज नॉट इन माय फेट, इट वाज नॉट इन माय जोन। बस अब दूसरी चीज के लिए हमें काम करना, उससे बाहर आइए। तो कल के इंटरव्यू में मैं सबको एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहूंगा, लेकिन मुझे पता है कुछ लोगों का सिलेक्शन होगा, खुदा ना खास्ता गॉड फॉरबिड कुछ लोगों का नहीं होगा। ना होने वालों के लिए दुनिया बंद नहीं हुई है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत डिफरेंट चीजें हैं करने को। तो अगर आपको लगे कि ना होने का रीजन आपका प्रॉपर होमवर्क नहीं था तो होमवर्क करिएगा, आपको लगे नहीं मेरा होमवर्क प्रॉपर था तो किसी ऐसी चीज को देखिएगा जहां पर आपको लगे कि ओके ये ज्यादा बेहतर जगह हो सकती है उससे, तो वहां नहीं हुआ अब यहां हो। इस डायनेमिज्म को ऑन रखिएगा हमेशा, यही लाइफ साइकिल। जितने भी 7 अरब 8 अरब लोग दुनिया में रह रहे हैं, सब कहीं ना कहीं अपने हिसाब से टेंशन में, पॉजिटिव टेंशन में जरूर रहते हैं कि नहीं अब ये करना है, अब वो करना है। और कंफर्ट जोन में जाने का मतलब आपने सारी चीजों को हालात पे डाल दिया, अब जो होगा होगा। तो आपने क्या किया? आज जब आप करेंगे नहीं तो आपको पता क्या चलेगा कि क्या होना है। तो ट्राई तो करिए, कम से कम आप ट्राई कर सकते हैं, आप कोशिश कर सकते हैं। कोशिश, योर ट्राई एट योर बेस्ट, यही आपका काम है, यही हमारा काम। अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर राउंड पे, जो हाउ टू फेस एन इंटरव्यू से रिलेट करता हुआ। अब आप अपने क्वेश्चन आंसर मुझसे पूछ लीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं। Dear candidates, kindly type your question answers in the Q&A box. And if somebody wants directly to sir, they can raise their hand. Preferably, please type in the Q&A. Seminara Sayyed has asked, how could answer about reason of job change if my current experience is less than 6 months? Suppose
if you have completed your internship of 2 to 3 months, so you are in that particular zone which is called 0 to 1. So 0 to 1 में ये बहुत कम कंपनीज में ऐसा देखा जाता है कि ओके तुम्हारा 6 महीने का एक्सपीरियंस नहीं है, तुम्हारा 10 महीने का नहीं है, 0 to 1 की रेंज में आ गए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बात। दूसरी बात, इफ योर प्रोफाइल इज सिलेक्टेड, इफ योर CV इज सिलेक्टेड, इंटरव्यू में अपने आप को वो प्रूफ करके दिखाओ जिसको कहा जाता है सरप्राइज। इंटरव्यू में एक सरप्राइज जरूर रखो, वो सरप्राइज जो तुम्हारी CV और कवर लेटर में नहीं होता। उनको लगे कि अगर ये बंदा फेस टू फेस इंटरव्यू नहीं देता तो हम एक अच्छे बंदे को लूज कर देते। वो सरप्राइज कुछ भी हो सकता है। दैट कुड बी योर वेरी गुड कम्युनिकेशन, दैट कुड बी योर वेरी गुड एम्पैथिकल पार्ट, दैट कुड बी योर वेरी गुड प्रेजेंटेशन, दैट कुड बी योर वेरी गुड टॉलरेंस, दैट कुड बी योर वेरी गुड पेशेंस। वो कुछ भी हो सकता है। जहां तक एक्सपीरियंस की बात है, रियल एक्सपीरियंस इफ यू आर गोइंग टू शो इन योर CV of 1 year and during your interview if they are not going to realize कि आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है तो मगर लगता नहीं है, वो ज्यादा एम्बैरेसिंग। सर, जिसको इंग्लिश ना आए और वो हिंदी का इस्तेमाल करे तो क्या प्रभाव पड़ेगा इंटरव्यू पे? एनोनिमस अटेंडी हैज आस्क्ड। सी टफ क्वेश्चन है। सी इंग्लिश आपको ऐसे तो नहीं सीखनी है कि आप अपनी मदर टंग छोड़ दीजिए। ऐसे अंग्रेजी सीखने के लिए नहीं कहा जा रहा। इंग्लिश इज अ बिजनेस लैंग्वेज फॉर अस, क्योंकि हमारी मदर टंग इंग्लिश नहीं है। ना ही हमें इंग्लिश ब्रिटिश की तरह बोलनी है, ना अमेरिकन की तरह बोलनी, और ना ही हम compete कर पाएंगे, क्योंकि वो उनकी मदर टंग, वो हमें compete नहीं कर पाएंगे हमारी मदर टंग। सो आप अपनी मदर टंग को लीजिए और जो भी लैंग्वेज, चाहे वो इंग्लिश हो, जर्मन हो, फ्रेंच हो, उसको अपनी बिजनेस लैंग्वेज के तौर पे लेके चलिए। खासकर इंडिया में इंग्लिश को जरूर एक बिजनेस लैंग्वेज के तौर पर लेके चलिए कि सपोज इफ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट योरसेल्फ इन एनी कंपनी फॉर 2 to 3 hours, so the barrier of language should not be there. इतनी इंग्लिश तो आपको सीखनी चाहिए। इसके कुछ चीजें ऐसी हैं आज के दौर में जिसमें आई बिलीव कि बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं बचे। ये एक वो पोर्शन है। इफ दे अलाउ यू, ओके, यू कैन स्पीक इन हिंदी, तब तो ठीक है। इफ दे आर आस्किंग देयर क्वेश्चंस इन इंग्लिश एंड यू आर रिप्लाइंग इन हिंदी, तो फिर मामला कुछ हल्का हो सकता है। सपोज एक ऐसा प्रोफाइल है इंटरनेशनल मार्केटिंग। सो इंटरनेशनल मार्केटिंग में ऑब्वियसली you must have very good hold on your communication and in writing as well. अगर पूरा पैन इंडिया ही एक मार्केट के तौर पे है आपका, तो साउथ में आप कैसे हिंदी में चीजों को सेटल डाउन करवाएंगे? हाउ यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड? सो इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। टू बी वेरी फ्रैंक, सीखिए। टू एड ऑन टू सर्स ओपिनियन, कम से कम इतनी सीख लीजिए कि जितने से आप जो है एक्सप्रेस कर पाए खुद को। बिल्कुल, अपना काम तो चला लीजिए, फिर तो धीरे धीरे प्रैक्टिस होती रहेगी और आता रहेगा। जी बिल्कुल, और जितना एक्सपीरियंस आप गेन करेंगे उतना ही आपको जो है आएगा इंशाल्लाह। और सर, इफ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड दैट ऑफ द जॉब अप्लाइड, वुड दैट अफेक्ट चांसेस ऑफ सिलेक्शन? मोहम्मद आदिल आमली वाला हैज आस्क्ड। सर, इफ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एजुकेशनल बैकग्राउंड, यानी कि जो स्टूडेंट का या जो एप्लीकेंट है उसका जो क्वालिफिकेशन है, एंड दैट ऑफ द जॉब अप्लाइड, यानी कि जो वैकेंसी है वहां पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वुड दैट अफेक्ट चांसेस ऑफ सिलेक्शन? Obviously, they are going to give the preference to those who are matching with the profile with their education. If they are very much associated, I mean on the same track, the education and the upcoming profile, obviously they would be preferred. अगर आपके साथ ऐसा नहीं है तो ये जॉब प्रोफाइल आप तब तक वेट करिए जब तक आपकी कॉल नहीं आ जाती। इसका मतलब उनको रिलेवेंट प्रोफाइल्स नहीं मिली, इसीलिए कॉल किया गया है। तो कॉल का वेट करना पड़ेगा। इसमें आप कुछ कर नहीं सकते। आपको उन्हीं एरियाज में काम करना चाहिए जहां पे जॉब प्रोफाइल की रिक्वायरमेंट को आप काफी हद तक फुलफिल कर रहे हो। Mr. Fatin Satvilkar has asked,
I applied for accounts job. I have completed my graduation in BCom and directly apply for job. Can you tell me about it? What do you exactly want to ask, Mr. Fatin? In which profile you have applied? Who is this? Fatin Satvilkar has asked, I applied for accounts job. I have completed my graduation in BCom and directly apply for job. Can you tell me about this? Yeah, can you please unmute yourself? Yes, Mr. If Fatin, you have applied, if you have applied for Fatin, Fatin, tell me how good you are in accounts ERP, which is called Tally. No. Yeah. Just. Fatin, you have applied for the job, right? Right. I have applied for the job. What is the profile? I have completed BCom. Okay, that is good. But in which profile you have applied? In account. In account. Do you understand about Tally? Yes. Okay. Do you have hands-on experience of Tally? No. मेरे ख्याल से आप Tally के कुछ tutorials YouTube पर देखिए and try to understand that what exactly is Tally and how Tally handles the receivable and payables of accounts. आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं, आपको बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि डेबिट और क्रेडिट पे ही पूरा अकाउंट डिपेंड करता है, राइट फ्रॉम जर्नल टिल बैलेंस शीट. तो ये ERP कैसे काम करता है, क्योंकि हर ERP का प्लेटफॉर्म डिफरेंट होता है, मगर बहुत डिफरेंट नहीं होता है. अगर आप इफ यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड टैली प्रॉपरली, तो आई बिलीव कि दूसरे अकाउंट्स के ERPs को भी आप बेहतर तरीके से समझ सकेंगे. Okay, sir. Thank you. Aisha Amreen has asked, sir, how will the freshers be questioned? How will the freshers be questioned? Not getting, sorry, Aisha. पूछ रही हैं कि फ्रेशर्स को कैसे, मतलब किस तरह से वो पूछे जाएंगे. जाहिर सी बात है, जिस प्रोफाइल के लिए उन्होंने अप्लाई किया होगा उसी से रिलेटेड सवाल होंगे. आयशा, again, let me tell you the first question. Tell me about yourself, then about your education, your subject knowledge, your internship, your place of birth. Tell me about yourself. जो है your native place, the place of birth, उससे कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं. सपोज मैं अगर कहूँ कि आई एम फ्रॉम वाराणसी, ओके, व्हाट डू यू नो अबाउट वाराणसी, क्या फेमस है बनारस का, कुछ बताइए, बनारस के बारे में कुछ बताइए. इस तरह से वो ना मतलब कैंडिडेट का हेजिटेशन दूर करते हैं कि वो थोड़ा सा ओपन अप हो, फिर धीरे धीरे उससे खुल के बात कीजिए. एट द सेम टाइम दे रियली वांट टू अंडरस्टैंड कि इसको इन सारी छोटी छोटी चीजों के बारे में पता भी है कि नहीं. अगर कोई कानपुर का है, उससे पूछा होगा टेल मी अबाउट कानपुर, कैसा है, क्या है, क्यों फेमस है. तो expect any kind of question, but you must prepare your subject knowledge, your behavioral question, and 10% open रखिए, कुछ भी पूछ सकते हैं. Thank you, sir. Tanfiz Ahmed has asked a very good question. Sir, what should we do during interview if we forget or don't know about any question? That is very good, really very good question. See, हम जो कहते हैं ना कि we are honest. So if you don't understand any reply, or if you do not know the reply of any question, just tell that, sir, I am very sorry, I don't understand the reply of this particular question, or I don't know the reply of this particular question, but I'll update my knowledge. Thank you so much. बस. अगर आपको उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं आता है तो उसको घुमाने की कोशिश मत करिए. Thank you, sir. Murshid Alam has asked, I haven't had any internship during my college, but has an experience of one in my line of work. So is it going to work in my favor? Obviously, your practical knowledge is always going to help a lot during your interview. No doubt, you have upper hand, irrespective that you haven't completed your, you haven't went for your internship. लेकिन बाद में आपने जो काम किया, obviously it's going to pay you. आप देखिएगा इसका सर, आपको दिखेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग होगा.
जो लोग 6 महीना साल भर काम करने के बाद, फ्रेशर्स 6 महीने काम करने के बाद जब इंटरव्यू में जाते हैं ना, या कोई ऐसा, कुछ फ्रेशर्स मुझे ऐसे भी दिखे हैं, कहते हैं अपने एक बड़े इंटरव्यू से पहले 8-10 ऐसे इंटरव्यू दे देते हैं। उनका उनका एक्सपीरियंस लेवल बड़ा डिफरेंट होता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा डिफरेंट होता है। तो आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल आई बिलीव बेहतर होगा। Is experience play most important role? I want to ask that. I am a fresher, so I am little worried. Yasir has asked. Not at all. Not at all. If there is condition that we need only experience, then obviously you are eliminated. You don't have to do anything there. You don't have to even send your CV. ठीक है, अगर उनको एक्सपीरियंस चाहिए तो उनको एक्सपीरियंस ही चाहिए. लेकिन if the condition is not for the experience, believe me, your calculated risk and challenges taking abilities will take you to the lead. Believe me. ये एक लिंक जनरेट हुआ है, इस पे अपना फीडबैक दे दीजिएगा प्लीज आज के सेशन को लेकर. जी, डियर स्टूडेंट्स एंड अटेंडीज, आई हैव शेयर्ड द फीडबैक लिंक. इस सेशन के खत्म होने के बाद आप लोग प्लीज इस पे अपने वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दे दीजिएगा. Anonymous attendee has asked, what kind of questions would be asked for the profile of receptionist and customer care executive? Customer care executive, receptionist में how good you are in hospitality. I mean, आपका एग्रेशन कैसा है, आप असर्टिव कैसे हैं, कैसे, क्योंकि कभी कभी रिसेप्शन पे कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जिनके क्वेश्चंस हमें बड़ा अनोइंग से जोन में लेके चले जाते हैं, बड़ा अनॉयड करते हैं. तो आपका एक अच्छा टॉलरेंस होना चाहिए. कस्टमर केयर काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए. एंड इन रिसेप्शन और इन जॉब ऑफ रिसेप्शनिस्ट, द एम्पैथिकल पार्ट वर्क्स अ लॉट, कि जो आ रहा है वो क्या चाहता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, ये ध्यान रखिएगा. जिसको हम क्लाइंट रियलाइजेशन फेज के नाम से भी जानते हैं, कि क्लाइंट क्या चाहता है. जो रिसेप्शन पे आ रहा है वो क्या चाहता है, वो चाहता है प्रॉपर रिसेप्शन, उसकी बात को प्रॉपर सुना जाए, उसकी बात का प्रॉपर रिप्लाई दिया जाए, और उसकी बात का, उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया जाए जल्दी से जल्दी. Zishan, regarding the timing of the interview, आपने जब रजिस्टर किया होगा एम्पायर जॉब्स पे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिली होंगी. So Sharik Malik has asked, I am 20 years old and I am a hotel management graduate, but I only have 5 month experience in hospitality and I have 2 years experience in real estate because hospitality industry was badly affected. So I grabbed the first opportunity I got and started working in real estate. If you are 20-year-old, my 28 years old. 28 years, okay. And you have total, I believe, some 3 years of experience. So what exactly he wants? What exactly his question is? Actually, he wants to ask that he's a hotel management graduate, but hotel management experience he just have a 5 months. After that, since the market was down and pandemic and so other reasons, so he did not get a chance to work in that industry, his industry where he has gained his education. So he worked in real estate for 2 years. Okay. And just to continue his livelihood, obvious सी बात है. But so will this count? His means how will he switch to his industry? I think so. Sharik Malik, can you unmute yourself and directly ask your question to sir and explain your point? शारिक, मैं समझ गया आपकी क्वेरी को. सी शारिक, अगर आपको लगता है कि आपको एनी हाउ जॉब करनी है और घर को सपोर्ट करना है, तब तो आपको किसी भी सेक्टर में जॉब करना. पहली बात तो ये, चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो एफएमसीजी हो, चाहे वो रियल एस्टेट. अगर आपको लगता है कि आप साल 1.5 साल रुककर वेट कर सकते हैं और अपने आप को 2 कदम पीछे आके सही से स्ट्रेंथ दे सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेट करता हुआ और होटल मैनेजमेंट को एसोसिएट करता हुआ कोई सॉफ्टवेयर जरूर देखना चाहिए. Yasir sir, I don't have any internship to experience, but
I'm just 12th pass, so worried. अरे तुम यार 12th हो और इतना ज्यादा परेशान क्यों? अभी यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम. डोंट वरी, यू कैन डू एन internship at any place. You just go for the internship. You will realize कि so many things you are going to learn. So 12 के लिए ऐसा नहीं कि जॉब नहीं है, जॉब बिल्कुल है, लेकिन आपके पास काफी कुछ करने के लिए टाइम भी काफी है. तो यू जस्ट डोंट वरी, यू जस्ट गो एंड just select the companies, just go through the companies, go through the websites of those companies and go and face the interview. तुम्हारे लिए इंटर्नशिप का ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं. Well, this is the Okay, last sir. Thank question you. which I am taking because it's already 6:27. Uh, it is anonymous attendee has asked. I have that it always haunts me to think about that I have ended my diploma in mechanical engineering with just 59.8%, and I sometimes think that I always get rejected by this. So I want to ask that the percentage really have that much impact on interview? If you want to see, to me, no. Believe me, no. But to some companies, yes, because they have criteria. So criteria में एटीएम से पैसा निकालने के लिए जैसे हमें डेबिट कार्ड की जरूरत होती है ना, तो कभी कभी डिग्री हमारा डेबिट कार्ड होता है, वो परसेंटेज हमारा डिग्री कार्ड एटीएम कार्ड होता है, वो कभी कभी जरूरी हो जाता है. लेकिन आज के टाइम में व्हाट आई बिलीव कि इन मोस्ट ऑफ द कंपनीज दे रियली वांट यू टू कम अप एंड प्रेजेंट योरसेल्फ. सो जैसे आपने बताया कि आपने मैकेनिकल वो किया हुआ है, डिप्लोमा, राइट? यस सर. ओके, तो मैकेनिकल डिप्लोमा के साथ साथ आपको ये भी पता होगा कि उसमें एक पार्ट है ऑटोकैड. अब मुझे नहीं मालूम कि आप ऑटोकैड के किस पोर्शन को कवर करते हैं. उसके बाद एक सॉफ्टवेयर है प्राइमेवेरा. एक और सॉफ्टवेयर है जो प्राइमेवेरा का बहुत ही अपडेटेड वर्जन है, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है. वो सॉरी, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मैं बताऊंगा आयशा मैम को. कैटिया एंड ऑल भी है सर, कैटिया भी है, रेविट है, कैटिया रेविट, है. हाँ रेविट. तो रेविट बहुत ही अपडेटेड वर्जन है. इन सारी चीजों को का सपोर्ट लीजिए. एक चीज. दूसरी चीज, इंजीनियर्स के लिए ये बहुत जरूरी है, चाहे वो डिप्लोमा के हों या ना हो, उनके लिए ड्राइंग की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है. एक ऐसी ड्राइंग जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल के मटेरियल्स भरे हुए हैं और आपसे कहा जाए मैकेनिकल का मटेरियल को टेक ऑफ कर लो, सो आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप मैकेनिकल के मटेरियल का टेक ऑफ कर सकें. सो वेरी गुड होल्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ड्राइंग इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट. इसको हमेशा ध्यान रखिएगा. और अगर आपको साइट पे जाके काम करना है तो भी ड्राइंग समझनी पड़ेगी. अगर यू वांट टू बिकम द पार्ट ऑफ द प्लानिंग तो भी आपको ड्राइंग समझनी पड़ेगी. ये बहुत बहुत जरूरी पार्ट है. डिप्लोमा, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, सिविल, बिना ड्राइंग के, बेहतर अंडरस्टैंडिंग के आपका एक बेहतर करियर कम से कम आई डोंट सी. Okay, thank you so much all of you. That's all for today's session. Since it's already the time is over, so we will have to end the session. Thank you all of you for being present here, and I really thank Nadeem sir for guiding us so well and giving so much of informative points about tomorrow's interview. I wish all of you all the best for tomorrow. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that he grants success to all of you. Would you like to add something, sir? Nadeem sir, just 10-20 seconds. Bundle of thanks to everyone, and life is an interview. Just go for the interview. Thank you so much, sir. That were golden words, sir. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam, ma'am.